Now we're getting some more breaking news on the broadcast. Congress party has now reacted to the murder horror that was reported out of the state of Chhattisgarh. Congress leader Kumari Shailaja has said that it is very saddening an incident and their government in the state is looking into this with utter seriousness. They also have said that they will go ahead and nab the accused at the earliest. Listen in. बीजेपी काफी हमलावर है इस पे, आपको कैसे देखते हैं? तो ये जो भी जहां भी इस तरह की हरकत होती है, चाहे कांग्रेस रूल स्टेट है या कहीं भी, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। सब सरकारों को लेना चाहिए। बेशक वहां पर हमारी सरकार है, एक लड़की का, महिला का जहां सवाल होता है या किसी भी और दूसरे अलग किसी वीकर सेक्शन या कोई भी इस तरह की बात होती है, सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे हमारी सरकार है वहां पर, वो इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। My colleague Anshul Singh, who has just got us that interview, is joining us on the broadcast. Anshul, we just heard Kumari Shailaja. Now she is saying that there will be adequate action that is going to be taken when it comes to this horrific murder that's been reported out of Chhattisgarh. So yes, Kumari Shailaja has said that the government is absolutely serious when it comes to nabbing the accused and providing justice to the family of the victim. But yes, the entire question being that it has been more than 4 days and the local police has still not been able to get their hands on the accused. In fact, the local police still doesn't have any headway as to where is the accused at this point in time. Now remember, that person, the accused in this entire case, flew all the way from Gujarat to Chhattisgarh, where he went ahead and committed this crime. And the girl was alone when she was stabbed by a screwdriver 51 times, and hence the kind of gruesome incident that has happened, that has definitely shook the conscience of the entire nation. But yes, we are still awaiting for any action to be taken against the accused in this entire matter. The local police has been saying that they are very serious, and already 4 teams have been found by the police to investigate this entire matter and nab the accused at the earliest. One of the teams also went to the family of the accused in this entire matter, where they spoke to the family members as well. Their statements have been recorded. And also another team flew to Gujarat, where the accused was working. They spoke to his colleagues and his bosses as well, just to get an exact sense of what was going inside the mind of the accused. But yes, the police has still not been able to nab the accused. Now it remains to be seen as to how quickly will they be able to get their hands on the accused. Till then, the BJP has got a lot of ammunition to attack the Congress on the law and order situation in Chhattisgarh, because remember, this is not the first of its kind incident that has happened in Chhattisgarh. Just a few days ago, another rape incident was reported out of Chhattisgarh, where the police did not register an FIR for almost 4 to 5 days, and that also gave a lot of ammunition to the BJP to continue with their attack on the law and order situation in that state. So yes, it remains to be seen that Congress, who is in the back foot at this point in time regarding the law and order situation, it remains to be seen how do they come out and defend this entire situation and attack back at the BJP. Right, Anshul, stay on with us. We've got some more breaking news on this very story that we continue to track on the broadcast. And like you were mentioning, politics doesn't stop being played. Now that we're talking about the Congress government in Chhattisgarh, BJP has gone on to attack the Congress government. This murder that's been reported out of Chhattisgarh, now they are claiming an inter-religious angle because of which that the murder has happened. These are the claims, unfortunately, that have been made by the BJP. Let's listen in. ये एक सामान्य प्यार का मामला नहीं है, इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से धर्मांतरण और लौ जिहाद को बड़ा प्रश्रय मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो स्थिति इतनी विकट हो गई है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी अपने समाज को धर्मांतरण के खिलाफ सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, और कांग्रेस के नंबर 2 मंत्री टीएस सिंहदेव जी अपने क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमान को बसाने के खिलाफ जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, लगातार सनातन धर्म पर आक्रमण कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस सरकार के आने के बाद धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले बढ़ गए कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से एक जिहादी जो गुजरात से आकर के सिर्फ एक बेटी को, आदिवासी समाज से जो संबंध रखने वाली बेटी थी, उसको इसलिए 51 बार पेचकस से गोद के मारा क्योंकि उसने फोन पे वो बेटी ने बात नहीं किया। मैं बार बार केंद्र सरकार से निवेदन के साथ मांग करता हूं कि इन लव जिहादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे कठोर कानून बनाया जाए
ताकि एक तय सीमा के अंदर इनके कृत्यों की सजा मिल सके। इन जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते कि किस प्रकार से शहबाज नाम का जिहादी छत्तीसगढ़ में जाके मारता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल कठोर कानून बनाया जाए इनके खिलाफ, ताकि सजा इनको मिल सके। Let me take this across to my colleague Abdul Aslam, who is joining us live from Korba, from where this unfortunate incident has been reported from in Chhattisgarh. Abdul, BJP जो पॉलिटिसाइजेशन है वो कंटिन्यू कर रही है, कंसिडरिंग यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो रिलीजियस कन्वर्जन्स की बीजेपी बात करती है, अगर आप छत्तीसगढ़ की टोपोग्राफी देखें तो अभी कल की एक घटना है जहां पे फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स ऑफ क्रिश्चियंस इनटू हिंदूज वाज डन। तो ये भी एक टोपोग्राफी का हिस्सा है, लेकिन इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके धर्मांतरण का जो मामला सामने आ रहा है उसको लेकर भी बीजेपी हमेशा से आक्रोशित रही है और अटैक करते रही है सरकारों पर। और यहाँ प्रदेश की भी अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, जिसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयान लगातार जारी है। और इसका जवाब भी कांग्रेस अपने उसमें देती जरूर है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर नकेल कस रहे हैं। लेकिन अब तक अगर यहाँ कोरबा की अगर बात करें, नील का उसकी बात करें तो उसकी अब तक जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाया है। अब्दुल, इसके बारे में, इस केस के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दे दीजिए। ये केस पुलिस की नज़र में कब आया था, एफआईआर कब लॉन्च हुई, कंसिडरिंग पुलिस ने अब 4 टीम्स डिप्लॉय की है, क्या हो रहा है, गिरफ्तारी किस हिसाब से हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी क्या है? क्योंकि अभी हमारे कोलीग अंशुल जो हमारे साथ है वो ये भी बता रहे थे कि ये जो बंदा है ये गुजरात से ट्रैवल करके छत्तीसगढ़ आया, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? क्या गुजरात पुलिस से भी इन टच में है? जी आपको बता दूं कि ये घटना 24 दिसंबर की सुबह पता पुलिस को सामने आई है, पुलिस के सामने आई है, जब जो मृतिका है नील, उसके घर में जैसे ही उसका भाई अपनी माँ को स्कूल छोड़कर वापस घर पहुंचता है, जब वो अकेले घर में थी, उसके बाद वो उस घर का दरवाजा जो है वो सामने बंद मिलता है, तो पीछे के दरवाजे से जाकर देखता है तो वो लाश, उसकी खून से सनी हुई लाश उसे मिली थी। उसके बाद उसने परिजन को और पुलिस को इसकी सूचना दी। सीएससीबी पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग की मदद से जांच के लिए मौके पर पहुंचे। उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज 302 का किया गया और उसके बाद से मामले की जांच करने के लिए एसपी ने यहाँ 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें 4 टीमें जो है अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, जिसमें एक टीम गुजरात भी गई हुई है जो आरोपी की तलाश करने के लिए। वहीं जो आरोपी पूर्व में जो वो यहाँ कंडक्टर का काम करता था बस में, जिस समय इसकी युवती से पहचान हुई थी, उस जशपुर जो पत्थलगांव के इलाके में भी पुलिस गई हुई है। जी अब्दुल, thank you so much for joining us. In fact, let's now listen into the Chhattisgarh Chief Minister on how he has responded to this horrific incident that's been reported out of his state. Let's take a look at that. ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं।